Good afternoon. Myself, Dr. Sandhya Sharma. I am the associate. I am working here as an associate professor. My department is education and teaching methodology. My subject today I am taking the class. The subject is inclusive education and guidance in a school level. My topic is students with different needs and differently abled. Those students are differently able means the some people total population of India, there is 2% peoples of the differently able community. ये ऐसे लोग हैं जो कि किसी तरीके की फिज़िकल और मेंटल चैलेंज से ग्रस्त हैं. इसमें क्या है कि ये इन बच्चों को मुख्य जीवन धारा से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनको कि इन लोगों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी एजुकेशन, उनकी रोज़गार, उनकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सो मैनी थिंग्स आर देयर. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारी वजीफ़ा और स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस की हैं. तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन लोग हैं और ये जो इस तरह की चीज़ों या इस तरह की कैटेगरीज़ में आते हैं, इनकी क्या विशेष आवश्यकताएं हैं और सोसाइटी के पास ऐसे कितने लोग हैं जो किसी तरीके के फ़िज़िकल और मेंटल चैलेंज से ग्रस्त हैं और फिर भी वो एक बहुत अच्छी हेल्दी और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. तो my topic is students with different needs and differently able. So first thing is there who's that type of pupils. Introduction is differently able is often to describe to lack of normal functioning of physical, mental, psychological processes. It is also defined as learning difficulties or difficulties in adjustment socially, which interferes with a person normal growth and development. A disabled child has been defined as one who is unable to ensure by himself wholly or partially the necessities of a normal individual or social life, including work as a result of deficiency, whether cognition or not, in his physical or mental capabilities. Person having any of the disabilities, namely visual, communication, hearing and और स्पीच. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में जो बच्चे हैं, जो लोग आते हैं, वो दो तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. हियरिंग और स्पीच, उनको सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है और बोलने की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड लोकोमोटर विल बी कंसिडर फिजिकली डिसेबल. More people are now convinced that the disabled is not the right term to describe the people who are challenged. मतलब जो डिसेबल्ड जो वर्ड है वो इस तरह के लोगों के लिए एक अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि डिसेबल मीन्स तो जो व्यक्ति टोटली डिसेबल्ड है और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एबिलिटी नहीं है. बट डिफरेंटली एबल इज़ द करेक्ट वर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंटली एबल मीन्स जो अलग तरीके से सक्षम तो है पर वो कुछ अलग तरीके से सक्षम है नॉर्मल लोगों की अपेक्षा. हु आर द चैलेंज मैनी नाउ प्रीफर यूजिंग द टर्म डिफरेंटली एबल्ड. अब उस शब्द की जगह, डिसेबल की जगह हम डिफरेंटली एबल वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तो द सेकेंड थिंग, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल्स, कि ये डिफरेंटली एबल या की डेफिनेशन क्या है, ये कौन, इसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो डिफरेंटली एबल इज़ अ टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हु हैव डिसेबिलिटीज़ or impairments. It is a more inclusive and person centered alternative to the terms disabled or handicapped, which can
carry negative connections or emphasize limitations. Differently able emphasize the idea that individuals with uh, with disabilities possess unique abilities, talent, and perspective that may differ from those without disabilities. Here is a definition and meaning of the term differently able. Differently able is a term used to describe individuals who have the physical, sensory, intellectual, or developmental impairments or disabilities. If emphasize the idea that these individuals may have abilities and talents that different from those typical considered able bodied. ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये वो लोग जो कि किसी तरह का फिजिकल और मेंटली चैलेंज है, हो सकता है कि वो दृष्टिबाधित हो, मीन्स ब्लाइंड हो सकता है कि वो अस्थिबाधित हो, अस्थिबाधित में जो पोलियोग्रस्त हो सकता है, या पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई इशू हो सकता है। तो ये लोग जो है किसी तरीके से डिफरेंट देखने में या बिहेवियर में कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें किसी प्रकार की कोई योग्यता और क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे रविंद्रनाथ जैन, ये एक सिंगर हैं जो पहले तो केवल भजन गायकी में उनका बहुत नाम है, और वो बाय बर्थ जो है ब्लाइंड है। तो उन ऐसे लोगों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस बात के प्रावधान किया गया है कि इस तरह के बच्चों को जो है पढ़ाई के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, ट्रेन में और बसेज में इनके लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। आगे बात करते हैं meaning. What is the meaning of differently able? The term differently able carries several important connotations. Inclusivity is emphasized the importance of inclusivity and recognizing the worth and contribution of individuals with disabilities in all aspects of life, including education, employment, and society at large. Empowerment. Differently able empowers the individuals by focusing their abilities and potential rather than their limitations. अगर हम उनके अंतर्निहित जो उनकी शक्तियां हैं, उनके अंदर जो स्किल्स हैं और जो अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर हमें फोकस करना चाहिए, न कि उन चीज़ों पर जो कि जिसके लिए वो लिमिटेड है या जिनके पास वो जो स्किल नहीं है, उनको छोड़कर हमें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो वाकई में उनके अंदर जो पोटेंशियल है और उसके अंदर जो पॉजिटिव स्किल्स हैं या जो ऐसे स्किल्स हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक सामान्य तरीके से जी सकते हैं, जिन स्किल्स के सहयोग की हेल्प से, है ना। तो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट्स अ पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ्स बेसिस पर्सपेक्टिव्स ऑन डिसेबिलिटीज़, और हमें जो दिव्यांगता के प्रति हमारी जो सोच है उसको साइड करके हम नकारात्मक जो सोच है उसको हटाकर हमें ऐसे लोगों को सकारात्मक रूप से सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट. यूजिंग दिस term conveys the respect for the individuality and dignity of people with disabilities. It encourages treating everyone with kindness and acknowledging their unique ability and experiences. Next thing is equality. It aligns with the principles of equality and promotes the idea that people will disabilities should have the same rights, opportunities and access to resources as those without disabilities. Awareness. Differently able encourage raising awareness about the diverse abilities and challenges that individuals with disabilities may face. It fosters a more inclusive
and understanding society. That means कि we should be try for these peoples to connect with the normal life and mainstream of the life, और इन लोगों के प्रति हमें जो है सम्मान का भाव हमारा इनके प्रति होना चाहिए. साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली पॉलिसीज़ और जो रूल और रेगुलेशंस हैं उसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो अधिक से अधिक उनको मुहैया कराई जा सके. नेक्स्ट थिंग इज realizes many differently abled individuals demonstrate remarkable resiliences in the face of challenges. इस तरह के कई ऐसे लोग हैं या एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में जिन्होंने एकदम से ऐसा रिमार्केबल अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी को दिया है, चले भले ही वो किसी जो है फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से ग्रस्त हों, है ना. They often develop strong coping strategies and adapt to various situations with determinations. और ये लोग अपनी जो सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए या उस चीज़ से उभरने के लिए कई बार वो इस तरह के चमत्कारिक कौशलों का विकास कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने जो डेली रूटीन के काम है उसके साथ साथ वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी जो है आगे तक गए हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ उनके पास नहीं है, सपोज दोज पीपल्स हैव नॉट द आईज आर दिस विजुअल डिफरेंटली एबल, तो ये लोग जो है अपनी सिक्स सेंस से और अपने दूसरे तरीके के एफर्ट से अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो फुलफ़िल कर लेते हैं. फिर है कि क्रिएटिविटी, इन लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो उनकी जो बाकी जो एनर्जी है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो फिर वो इस तरह की चीज़ों में फोकस बाकी सारी चीज़ों से हटाकर वो अपने ऐसी चीज़ों पर जो उनके अंदर पॉजिटिव स्किल्स हैं उन पर फोकस करते हैं और अपना दी बेस्ट देते हैं, है ना. तो क्रिएटिविटी, डिफरेंटली एबल पर्सन ऑफन पजेसेस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. दे मे फाइंड innovative ways to navigate obstacles and achieve their goals. वो अपने रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको पार करने के लिए वो कुछ इस तरह के स्किल्स डेवलप कर लेते हैं और जो कि उनकी गोल अचीवमेंट में उनको हेल्प करते हैं, और वो लोग जो है उन एफर्ट्स के साथ अपने सभी गोल्स को अचीव कर लेते हैं. फिर है persistence. These individuals tend to exhibit a high level of persistent and perseverance. They are motivated to overcome barriers and work diligently to achieve their objectives. फिर इन लोगों के साथ हमें सिंपैथी बिहेवियर करना चाहिए. Empathic living with the disability can lead to heightened empathy and understanding of others' struggles. Differently able person often shows compassion and support for those facing the difficulties. इस तरह के लोग जो है दूसरों की परेशानियों को भी अच्छे से समझते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज adaptability. Mainly differently able individuals are adaptable and flexible in their approaches to life. They readily just adjust to changing circumstances and find ways to thrive. Next thing is strong self-advocacy. Advocacy for their needs and rights is common trait among the differently able persons. They often become effective self-advocates and champions for disability rights. Positive attitude. Despite facing adversity, many differently able individuals maintain a positive attitude and sense of humor. They approach life with optimism and enthusiasm. Next thing is respect for diversity. Having personal experience with diversity and inclusion. Differently able person often have a heightened and appreciation or diversity in all forms.
They valued inclusivity and equality. Independence, differently able individuals frequently strive for independence and self-sufficiency. They seek to lead fulfilling lives on their terms. Innovative thinking, some differently able individuals exhibit innovative thinking and see drawn to fields that involves technology or design solution, improve accessibility. Next thing is innovative thinking. Some differently able individuals exhibit innovative thinking and are drawn to fields that involve technology or design solution to improve accessibility. A strong support network. Building strong support networks a common characteristic. Differently able person often have close relationship with family, friends and communities that offer emotional and practical support. Next thing is leadership potential. Many differently able individuals demonstrate leadership potential. They may become advocates, mentors, or role models for other disabled persons or differently able persons. Next thing is determination. The determination to succeed and overcome obstacles is a hallmark of differently abled individuals. They often display expectations, tenacity in pursuing their goals. Next thing is diverse talent. Differently able individuals possess a wide range of talent and skill across various domains from the art, sports to academia and professional fields. कई सारे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं जो इन सब फील्ड्स में अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, लाइक स्पोर्ट्स, एकेडमिक, प्रोफेशनल फील्ड्स और आर्ट्स also. There is a name of Sudha Chandran, is from the dance, performing dance skills she has. Awareness and education. They are often well informed about their conditions and disability related issues. Many are actively engaged in raising awareness, educating others about the disability or different ability. Next thing is फिजिकल डिसेबिलिटीज़. ये क्या है? मोबिलिटी. ये दीज द टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़. ये वो कौन कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि संभावित तौर से लोगों में हो सकती हैं. मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स. दिस डिसेबिलिटी अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मूव और कंट्रोल देयर बॉडीज मूवमेंट्स. एग्जाम्पल इंक्लूड पैरालिसिस, एम्प्यूटेशंस एंड सेरेब्रल पल्सी. ये कुछ इस तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं. पैरालिसिस जिसमें कि बॉडी का कुछ हिस्सा या ऐसा पैरालाइज हो जाता है और वो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ब्रेन उनका प्रॉपर तरीके से काम करता है. फिर है सेरेब्रल पल्सी, एक तरह की मस्कुलर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है जिसमें कि जो व्यक्ति का जो स्नायु तंत्र है वो ठीक ढंग से काम नहीं करता है और उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो थोड़ा कम होता है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये फिजिकल एबिलिटीज़ हैं केवल और डिसेबिलिटीज़ हैं. ब्रेन जो है सही प्रॉपर तरीके से काम करता है. फिर एक नेक्स्ट टाइप है ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी. कंडीशन दैट अफेक्ट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सच एज आर्थराइटिस और लिम्ब डिफॉर्मिटीज़. ये हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है जिसको हम अस्थिबाधित, हिंदी में अस्थिबाधित कह सकते हैं, जिसमें हाथ पैरों की हड्डियों का टेढ़ा होना या जो है कुछ नॉर्मल से कुछ अलग तरह की उसकी शेप होना. ये एक तरह का ये ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसमें जो है व्यक्ति सही तरीके से उसका पोस्चर सही नहीं होता है. ठीक है. फिर है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. इंजरीज टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट कैन रिजल्ट इज पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस, सेंसरी डिसेबिलिटीज. अब ये जो टाइप है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसमें क्या है
कि रीढ़ की हड्डी में या जो नर्व ब्रेन से नीचे बाकी बॉडी में जा रही है वहाँ किसी तरह की चोट लगने से बाद में भी इस तरह की प्रॉब्लम, ये बाई बर्थ भी हो सकता है, ये जन्म के समय के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी ये हो सकता है, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ये हो सकता है, या कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। फिर नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट्स, कंडीशन दैट अफेक्ट विजन रेंजिंग फ्रॉम पार्शियल साइट टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। ये दृष्टि, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दृष्टिबाधित, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये कई तरीके से हो सकता है। किसी को कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और किसी को पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन पार्शियल ब्लाइंडनेस में हो सकता है कि बच्चे को कुछ कम दिखाई देता हो, या कुछ जो उसकी रेटिना पे जो पिक्चर्स बनते हैं वो थोड़े से मूविंग फॉर्म में होते हैं। फिर नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, कंडीशन दैट अफेक्ट हियरिंग इंक्लूडिंग पार्शियल हियरिंग लॉस एंड कंप्लीट डेफनेस। अब ये जो है श्रवण बाधित समस्या है, ये कई तरह की हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है और कुछ पार्सल भी हो सकती है। पार्सल केसेस में पार्सल ये डेफ उसमें जो इस कह सकते हिंदी में कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, ऊंचा सा मतलब वो सुन कम पाते हैं, इसलिए उनके लिए हमें जोर से बोलना होता है, इसलिए हम उसको ऊंचे सुनने की प्रॉब्लम बोल देते हैं, जबकि एक्चुअली होता ये है कि वो कुछ पार्सल बहरापन उनमें होता है, सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं श्रवण बाधित प्रॉब्लम। फिर है डेफ ब्लाइंडनेस, इंडिविजुअल विद बोथ विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स विच कैन वेरी इन सीवियरिटी, कि कुछ बच्चे जो है डेफ एंड ब्लाइंड, गूंगे और बहरे और अंधे भी हो सकते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो बाई बर्थ भी हो सकती हैं और एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, डाउन सिंड्रोम, ये एक तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें क्रोमोजोम्स जो 43 जो क्रोमोजोम्स होते हैं, 46, तो उनमें जो है कुछ क्रोमोजोम्स की जो टोटल काउंटिंग है वो कम है, जिसमें कम होती है वो डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे। ये क्या है? अ जेनेटिक कंडीशन दैट लीड्स टू इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिलेज। ये इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल और मेंटल वो बहुत स्लो होता है। जैसे उनकी फिजिकल एज अगर 10 साल है तो मेंटल एज हो सकता है उनकी 4 से 5 साल ही हो। तो ये जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो है उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं या आईक्यू है वो एज से कम हो सकता है या बहुत डिले होगा। ठीक है। फिर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, a group of developmental disorder characterized by difficulties in social interaction, communication and repetitive behaviors। ये एक इस तरह एक ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर ही है जिसमें कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत कम होता है और इसकी वजह से बच्चों में हो सकता है कि उनकी जो शब्दकोश कम होते हैं तो वो अपनी बातों को या अपने विचारों को ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी उनका जो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो कम हो सकता है। और ऐसे लोगों को अक्सर लाइट फोबिया, क्राउड फोबिया जैसी चीज़ें होती हैं और प्लस उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है जिस वजह से वो अपनी बात को सही ढंग से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडॉप्टिव बिहेवियर्स। ये कुछ इस तरह की व्यवहार संबंधी ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति जो है कई सारी चीज़ों को एकदम से सीख नहीं पाता और चीज़ों को समझने में उसे समय लग जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज फिजिटिक और मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़, डिप्रेशन,
ये एक तरह का इमोशनल इशू है। व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग इस आजकल की जो आपाधापी की एज है, इस समय है, उसमें काफ़ी सारे लोग इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं। इसमें क्या है कि अ मूड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इस डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में व्यक्ति जो है क्या करता है कि अपनी उदास रहता है और हमेशा दुखी फीलिंग्स को फेस करता है। साथ ही उसका जो है कई सारी चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कई बार लोगों का ज़िंदगी या जीवन जीने में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो लोग इस प्रॉब्लम की गंभीरता के चलते कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। फिर है एंजाइटी डिसऑर्डर, कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्सेसिव वरी, फियर और एंजाइटी। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, अ मूड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग्स बिटवीन मैनिक एंड डिप्रेसिव स्टेट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे की स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे और दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे।